انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے زبور کی کتاب، اس کا 56 زبور، اس کی 8ویں آیت، اور پھر دوسرا حوالہ ہے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور 18ویں آیت۔ زبور 56 اس کی 8ویں آیت میں آپ کے سامنے کلام خدا میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے، کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے؟ یرمیہ کی کتاب، اس کا 9واں باب، اس کی 18ویں آیت۔ اور جلدی کریں اور ہمارے لیے نوحہ اٹھائیں، تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور ہماری پلکوں سے سیلاب اشک بہہ نکلے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس و جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے؟ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور ایک بار پھر تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ درخواست کرتا ہوں کہ میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے، میرا روح جان جسم اے خداوند تیری تعویل میں رہے۔ کامل استاد اے خداوند روح القدس کی مدد، سہایتا اور اے خداوند دانش میسر ہو، تاکہ خداوند آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ یہ میسج جو ہے گزشتہ سے وابستہ ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے آنسوؤں کی نمی پر بات کی تھی اور ہم نے چند شخصیات کے کردار پر جو ہے وہ غور و خوض کیا تھا، لیکن میں اس بات کو نہیں جان پا رہا کہ کیوں یہ ایک رجحان ہے، حالانکہ ہمارے چاروں طرف رنگ ہیں، لائٹیں ہیں، خوشیاں ہیں اور کرسمس کی آمد ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ دل اور ذہن جو ہے وہ ایک دم کھلا ہوا ہے۔ کئی لوگوں کو اپنوں سے ملنے کی جستجو ہے، کئی لوگوں کو کچھ بہت اچھا پہننے کرنے اور کہیں آنے جانے، چھٹیاں منانے کی جو ہے جستجو ہے، اور اسی طرح ہر ایک جو ہے وہ ایک خوشی کے حصار میں ہے۔ لیکن خوش میں بھی ہوں، مجھے بھی خوشی ہے، لیکن ایک رجحان ہمارا ایسا ہوتا ہے جو ہمیں کئی ایک حادثوں سے نکلنے نہیں دیتا۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہے۔ میں اس حادثے سے، اس عطر ڈالنے والے حادثے سے، اس واقعے سے باہر نہیں نکل پا رہا ہوں، اور میں بار بار اپنا جو ہے محاسبہ کرنے لگتا ہوں اور میں واپس اس میں لوٹ جاتا ہوں، تاکہ خوشی منانے سے پہلے میں خوشی کی اس قیمت کا آئیڈیا لگا سکوں، میں اس خوشی کی قیمت جو ہے اس کو محسوس کر سکوں کہ کیا اس نے ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے۔ میں خامیاں تلاش کرتا ہوں اپنیاں، میں خامیاں تلاش کرتا ہوں اپنی خامیاں، کہ جب میں اس کو اپنی زندگی میں ریسیو کروں تو میرے پاس ایک اچھی جگہ ہونی چاہیے۔ آج بھی وہ میرا دروازہ کھٹکھٹا کے یہ نہ کہے، اس کو یہ جواب سننا نہ ملے، سرائے میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، اور وہ کوئی استبل ڈھونڈتا ہوا میری زندگی سے دور نکل جائے، دور چلا جائے، اور میں اپنی تیاری کے ساتھ وہیں پر بیٹھا رہوں۔ ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ رہے گی تیری یادوں پر میرے آنسوؤں کی نمی، رہے گی تیری یادوں پر میرے آنسوؤں کی نمی، شبنم کی طرح تیرے پاؤں کو تر کریں گے یہ آنسو۔ کبھی آنکھوں کی صفائی کے لیے
खुदावंद के सामने हमें जाना चाहिए। और आज जिस मजमून पर हम बात कर रहे हैं, आप इस बात को जानते हैं, ये गुज़श्ता से व्यवस्था है आंसुओं की नमी, लेकिन उसमें हमने एक लफ्ज का इजाफा किया है और वो है कच्ची कहगल। कच्ची कहगल, कहगल लफ्ज डिक्शनरी कहती है, मुफक्कर साहबान कहते हैं कि कहगल लफ्ज जो है ये अभी उर्दू में से जो है दम तोड़ गया है, मर गया है, खत्म हो गया है, लेकिन बहुत खास जगह पर इसका इस्तेमाल होता है और इसको कई जगह पर तोड़ के लिखा जाता है। काफ है और गिल, कहगल, कहगल, और इस लफ्ज का मतलब है किसी दीवार पर लेप करना, ले लगाना। और जिस तरह आज एडवांस जमाने में हम सीमेंट और रेत से प्लस्तर करते हैं दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए, किसी वक्त में गांव गोठों में तो अब भी, लेकिन किसी वक्त में हर जगह पर जब कच्ची दीवारें खड़ी की जाती थी तो उसके बाद फिर उन दीवारों पर औरतें और मर्द जो हैं वो मिलकर उनके ऊपर एक मिट्टी की परत जो है वो चढ़ाते थे, बहुत नफासत के साथ, और उसके अंदर वो भूस मिलाते थे और वो परत जो है वो उसके ऊपर जो है वो चढ़ाई जाती थी। आइए मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ता हूं हिजकिय्याह की किताब, हाँ जी, हिजकिय्याह की किताब उसका 22वां बाब, हिजकिय्याह की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 28वीं आयत। कलाम खुदा में कुछ इस तरह मरकूम है। हिजकिय्याह की किताब उसका 22वां बाब उसकी 28वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, और उसके नबी उनके लिए कच्ची कहगल करते हैं, बातल रोया देखते और झूठी फालगिरी करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, हालांकि खुदावंद ने नहीं फरमाया। यहां पर आज जिस बात पर हम गौर कर रहे हैं वो है कलाम की तासीर। खुदा कहते हैं कलाम में, मेरा कलाम बेतासीर वापस नहीं आता, लेकिन कभी हमने इस लफ्ज के मनफी पहलू पर गौर नहीं किया। गौर कीजिए, आज अपने अंदर इस लफ्ज को महसूस करें, मेरा कलाम बेतासीर वापस नहीं आता। बेतासीर से मुराद है अपना मकसद पूरा किए बगैर। अगर वो किसी को रद्द करता है तो कलाम करता है, अगर वो किसी को कबूल करता है तो कलाम करता है। रद्द कबूल के दरमियान एक ऐसा तलक है और वो है खुदा का कलाम। इसलिए खुदावंद कहते हैं, मैं मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुजरिम साबित हो चुका है। और आंसू जो हैं वो हमारी नदामत को बयान करते हैं, पछतावा, हमारी एहसासे महरूमी, हमारा एहसासे गुनाह, जब वो आता है तो फिर हमारे आंसू जारी होते हैं। हम खुदा की बरकत और मोहब्बत को सही अंदाज में जो है वो पहचानते हैं। और नबियों ने, हमारे नबियों ने, हमारी क़यादत ने हमें अच्छे अच्छे पैगामात दे के, जिसमें हमारी करेक्शन नहीं होती है, हमें बहुत ऊपर ले आए हैं। यही हाल उस वक्त हो रहा था जब ये कलाम कलमबंद किया जा रहा था।
हिजकिय्याह ने अपनी असीरी, जब बाबल में इस्राएल को असीर करके लेके गए, हिजकिय्याह ने उस वक्त अपनी असीरी के 5 साल बाद खुदावंद ने उसे चुन लिया कि आजा, अब तू मेरे लिए काम करेगा। उस वक्त उस जगह पर जब लोग उसको झूठे पैगामात दे रहे थे, झूठी तसल्लियां दे रहे थे, लोग उसको कह रहे थे ओ फिक्र न करो, बस 6 माह रह गए हैं, बस 5 माह रह गए हैं, खुदावंद कलाम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए घुटनों पर रहता हूं, मैं तुम्हारे लिए रोजे रख रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा हूं। और बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो वहां पर तामीर हो चुकी थी। लेकिन एक ऐसा तबका भी था जो बहुत अच्छा था, पैसे वाला था, अमीर था, उसने वहां पर अपने कारोबार शुरू कर लिए थे। उनको अब इससे कुछ गरज नहीं थी कि वो वापस अपने मुल्क में जाते हैं या नहीं। उनके लिए बाबल बेस्ट था, अच्छा था, खुशो खुर्मी थी, प्यार था, मोहब्बत थी, अपने थे, और उनके पास जायदाद और दौलत थी। हाँ, कभी उनके अबाव जदाद आए होंगे असीरी में, कभी उन्होंने बड़ी मुश्किल उठाई होगी, कभी उन्होंने बड़े दुख सहे होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ मुफलिस किस्म के आदमी, कुछ गरीब गुरबा, कुछ वो लोग जिन्होंने कोशिश नहीं की, वो इस आस में बैठे थे हम वापस जाएंगे, हम वापस जाएंगे। खुदावंद कहते हैं कि तुम्हारा वापस आना जो है अच्छी बात है, लेकिन अभी जो हालात हैं उनके मुताबिक चलोगे तो बरकत का सबब होगा। आइए एक हवाला पढ़ते हैं। जिस तरह इन लोगों ने, आज की क़यादत ने हमारे किरदार के ऊपर कच्ची कहगल की हुई है, कलाम की कहगल की हुई है, कलाम का लेप ऐसा लगा दिया है कि हम अपनी शख्सियत को जान नहीं पा रहे, हम अपनी कमजोरियां ढूंढ नहीं पा रहे, हम अपने आप को इस लायक बना नहीं पा रहे जिस लायक वो हमें चाहता है। इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे किरदार पर कच्ची कहगल की है। जो मूसलाधार बारिश, तेज बारिश, मुसलसल बारिश धो डालेगी, उसको उखाड़ फेंकेगी, और हमारी असल जो है वो हमारे सामने लाएगी। आइए एक हवाला पढ़ते हैं। यशायाह की किताब, उसका 30 बाब, उसकी 15वीं आयत। क्योंकि खुदावंद यहोवा इस्राएल का कद्दूस यूं फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है। इन लोगों के अल्फाज पर कान ना धरो। मैंने इनसे कलाम नहीं किया, मैंने इनको तुम्हारे पास नहीं भेजा। मेरा खादम यर्मिया है, मेरा खादम दानिएल है, मेरा खादम हिजकिय्याह है, जिनको मैंने भेजा है। मैंने इनको नहीं भेजा। ये जो तुम्हें कहते हैं 6 माह में मैं तुम्हें निकाल लूंगा, खुदावंद तुम्हारे लिए बरकतों का टोकरा पकड़कर खड़ा है, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं क्योंकि खुदावंद यहोवा इस्राएल का कुदूस यूं फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है। खामोशी और तवक्कल में तुम्हारी कुव्वत है, पर तुमने ये ना चाहा। जब खुदावंद हमें किसी हालात के अंदर लाता है, हमें उन हालात को खुदावंद के लिए जो है वो बर्दाश्त करने की जरूरत है। हमें उन पर नजर रखने की जरूरत है और अपने लिए उनमें से खुदा के मकसद को ढूंढने की जरूरत है। हजारों क्रिसमस, हजारों बड़े दिन, हजारों इस तरह के त्योहार खुशी और गमी के साथ हमने मनाए हैं, लेकिन क्या कभी हमने खुदावंद के हुजूर खामोशी इख्तियार की है
खुदावंद मैं चलना चाहता हूं, खुदावंद मैं गुजरूंगा, खुदावंद मैं करूंगा। इसीलिए खुदावंद ने कहा, जो मुझसे ज्यादा माँ बाप बहन भाई और बीवी बच्चों को प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि उनके दरमियान झूठे फर्जंद जो हैं वो आ गए थे। वो झूठे फर्जंद जो गैब बीनों को कहते हैं तुम गैब बीनी ना करो, तुम मेरे हालात को मेरे लिए जो है मुझे उसके लिए मुजरम ना ठहराओ, तुम अच्छी अच्छी नबूवत करो, मैं कल ठीक हो जाऊंगा, कल खुदा मुझे बड़ी बरकत दे देगा, कल मेरा कारोबार चल पड़ेगा, कल मैं जो है एक शहर का एक अच्छा और मुअज़्ज़ज़ आदमी बन जाऊंगा, कल किरदार इक़्तिदार मेरे दरमियान जो है खड़ा होगा, कल मैं जो है सबसे बड़ा शख्स हूंगा। मैं हर जगह पर मैं, और इस मैं ने हमारे इखलाक की सूरत बिगाड़ रखी है, क्योंकि वो कच्ची कहगल के पीछे छुपा है। लेकिन खुदावंद क्या कहता है? शरीर के लिए सलामती नहीं है। यशाया 48वां बाब 22वीं है। खुदावंद फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं। और सलामती का मतलब जो यहां पर है वो है जमानत। सलामती का मतलब क्या है? जमानत। और आज कल तो हम जानते हैं कि हम किसी अनजान आदमी को उधार नहीं देते। कोई आ जाए हमारे पास तो हमें पूछे कि जी चंद पैसे, चंद जो हैं वो चीजें चाहिए, तो हम उसको कहते हैं जी आपको कोई जानने वाला है इधर? जी हाँ, तो उसको कह दें कि वो जी आपकी जमानत दे, हम आपको ये चीजें दे देंगे। जमानत देने वाला अपनी इज्जत, अपना पैसा, अपनी दौलत, अपनी चीजें, अपना किरदार गिरवी रख देता है। इसलिए इमसाल का मुसन्नफ कहता है अपने पड़ोसी का जामिन ना हो, मबादा वो तुझे रुसवा कर दे। कई बार हमसे जमानत मांगी जाती है अच्छे अल्फाज के साथ। अच्छा तो सब कहते हैं, लेकिन उन अल्फाज पर पूरा उतरना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही इन लोगों के गैबीनों ने किया। उनको उनके दिल पसंद कलाम से आशना करवाया। जो वो चाहते थे सुनना, उनको वही सुनाया गया। जो वो चाहते थे करना, उनको कलाम की रूह से वही जायज करार देकर किया जाने को कहा। वो बड़े खुश हुए और खुश रहे। यिर्मयाह की किताब उसका 6वां बाब उसकी 14वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है, क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। गौर करें अपने चारों तरफ, क्या आपको जमानत नजर आती है? क्या कोई हमारे लिए खड़ा होता है? क्या कोई हमें चाहता है? क्या कोई हमारी मुश्किल में हमारा साथ देता है? रुपए खर्च किए जा सकते हैं, वक्त दिया जा सकता है, लेकिन उस एहसास को महसूस नहीं किया जा सकता। उस मुश्किल को बांटा जा सकता है, लेकिन उस मुश्किल को अपनाया नहीं जा सकता, और ना कोई अपनाता है सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। यिर्मयाह की किताब उसका 14वां बाब 13वीं और 16वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, तब मैंने कहा ऐ खुदावंद खुदा, देख अंबिया उनसे कहते हैं तुम तलवार ना देखोगे और तुम में काल ना पड़ेगा,
बल्कि मैं इस मकाम में तुमको हकीकी सलामती बख्शूंगा। और 16वीं आयत में, और जिन लोगों से वो नबूवत करते हैं वो काल और तलवार के सबब से यरूशलेम के कूचों में फेंक दिए जाएंगे। उनको और उनकी बीवियों और उनके बेटों और उनकी बेटियों को दफन करने वाला कोई ना होगा। मैं उनकी बुराई उन पर उंडेल दूंगा। कितनी कराहियत उस वक्त हमें होती है जब कोई गंदगी हमारे ऊपर उंडेल दी जाए। खुदा कहता है उनके गैबीनों को, उनके नबियों को, उनकी क़यादत को, उनके रहनुमाओं को, उनके सरपरस्तों को मैं रुसवा करूंगा, जिन्होंने मेरा नाम लेके झूठी नबूवत की है और उन पर कच्ची कहगल की है ताकि वो कायम ना रह सके। और फिर खुदावंद कहते हैं पहले वक्त में, पहले जमानों में यूं होता था कि जब कोई सुलह के लिए आता था तो वो प्यादे अपने जो है वो पहले भेजता था। ऐसे लोग जो पैगाम रसा होते थे और आकर तो पैगाम देते थे। तो खुदावंद इस्राएल से कहते हैं जब तू प्यादों के साथ भागा तो उन्होंने तुझे थका दिया। प्यादों का एक मतलब जो है वो पैदल चलने वाले भी है। तो खुदावंद उसको कहते हैं जब प्यादों ने तुझे अपने साथ लिया या प्यादों के साथ तू चला, जब उन्होंने तुम्हें थका दिया तो तू उन मुश्किलात का क्या करेगा जिनमें तू आने वाले वक्त में जाने वाला है। यिर्मयाह की किताब 12वां बाब 5वीं है। अगर तुम प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे थका दिया तो फिर तुझ में ये ताब कहां के सवारों के बराबरी करे। तू सलामती की सरजमीन में तो बेखौफ है, लेकिन यर्दन के जंगल में क्या करेगा। यहां जो लफ्ज यर्दन इस्तेमाल किया गया है ये बाबल के लिए इस्तेमाल किया गया है, बाबल के मुल्क के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इसे कहा गया है यर्दन का जंगल, जंगल बियाबान। और उसकी कौम को, उसकी रियाया को, उसके लोगों को कहा गया है वो जिनकी दाढ़ें शेरे बबर की तरह हैं। उनमें तू क्या करेगा? तू तो कैद में जाने वाला है, तू असीरी में जाने वाला है। तू यर्दन के जंगल में किस तरह अपने आप को कायम रखेगा? अभी तो तू सलामती के वतन में है, अभी तो तू अपने घर में है, अभी तो तू उन लोगों से घिरा है जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। जब ये सब अलग हो जाएंगे उस वक्त तू क्या करेगा? जब ये सब तुझे छोड़ देंगे उस वक्त तू क्या करेगा? जब हर एक अपनी अपनी जिंदगी के लिए दौड़ेगा तब तू क्या करेगा? आइए उस कच्ची कहगल को अपने ऊपर महसूस करें। इससे पेशतर के हालात की बारिश, इससे पेशतर के हमारे इर्द गिर्द मुखालिफ तूफान उस कहगल को उतार डालें और दीवार खस्ता नजर आए, दीवार में रखने नजर आए, दीवार टूटी हुई दिखाई दे, दीवार कच्ची नजर आए। इससे पेशतर अपनी कहगल को आजमाने का वक्त आ गया है। अगर मुश्किल आई तो क्या करेंगे? क्योंकि किरदार पर कच्ची कहगल है। ऐसा कलाम है जो हमें हिफाजत नहीं दे रहा, जो हमें संभाल नहीं रहा, जो हमें पनाह नहीं दे रहा, जमानत नहीं दे रहा, बरकत नहीं, फतह नहीं, मकबूलियत नहीं, शराकत नहीं है। अगर आज कलाम हमें ये सारी प्रोटेक्शन नहीं देता, ये सारी चीजें मुहैया नहीं करता,
तो कच्ची कहकर है। हमें उसको आजमाना चाहिए, हमें उसको देखना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके। इसीलिए यिर्मयाह कहता है 23:17, वो मुझे हकीर जानने वालों से कहते रहते हैं, खुदावंद ने फरमाया है कि तुम्हारी सलामती होगी, और हर एक से जो अपने दिल की सख्ती पर चलता है कहते हैं तुझ पर कोई बला नहीं आएगी। कितने लोगों को आप दुआ देते हैं, क्या कभी सोचा कि वो इस काबिल है कि नहीं? जी हम अपना तो फर्ज अदा करते हैं, जी वो जाने तो उसका काम जाने। खुदा क्या कह रहा है कलाम में? वो मुझे हकीर जानने वालों से कहते रहते हैं, खुदावंद ने फरमाया है क्या कि तुम्हारी सलामती होगी। करते जाओ जो कर रहे हो, शाबाश, वेरी गुड, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, दुख दे रहे हो अच्छा कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, सता रहे हो अच्छा कर रहे हो। खुदा फरमाता है तुम्हारी सलामती होगी। वो रहीम बाप है, तुम्हारी सलामती होगी। लेकिन वो क्या कहता है? और हर एक से जो अपने दिल की सख्ती पर चलता है, वो कहते हैं तुझ पर कोई बला नहीं आएगी। और आज अगर हमारी जमानत नहीं दी जाती तो मेरा ख्याल है हम भी अपनी सख्त दिली के सबब से सजा उठाएंगे। और फिर दूसरे नंबर पर है हमारे ईमान पर मोहब्बत और एहसार की कच्ची कहगल है। हमारे ईमान पर मोहब्बत और एहसार, एहसार का मतलब है कुर्बानी, उसकी कच्ची कहगल है। एक मशहूर जमाना हवाला है पैदाइश की किताब 15वां बाब 6 आयत, और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। ये इब्राहिम है। खुदावंद उसको कहा अपने नातेदारों से निकल और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे देता हूं। मैं तुझे एक फर्जंदे नरीना बख्शूंगा। और वो इस बात पर चल निकला, उसने खुदावंद पर ईमान रखा और उसकी बात को माना। इस बात को खुदा ने उसके लिए रास्तबाजी शुमार किया। और आज इसी सवाल के साथ बात करना चाहता हूं, हमारी रास्तबाजी कैसी? क्या हमारी रास्तबाजी जो है ऐसी है कि हम मोहब्बत और कुर्बानी की कच्ची कहगल के नीचे हैं, या हमारा एहसास जितना भी हम एहसास जो है वो जताते तो हैं लेकिन एहसास करते नहीं। हमारे अंदर जज्बा तो है, हम दिखाते तो हैं, लेकिन उस जज्बे से किसी को फायदा नहीं होता। हमारे अंदर जो है वादा करने की सकत तो है, पर कभी वो वादा वफा नहीं कर पाए। आइए आज ये तीनों चीजें काम में लाने का टाइम, इस बड़े दिन से पहले, इस क्रिसमस से पहले जो एहसास आप अंदर रखते हैं उसको सिर्फ जताएं नहीं, उसको दिखाएं, इस्तेमाल करें। और वो जज्बा जो आप रखते हैं उसको सिर्फ दिखाएं नहीं, उससे लोगों को जो है ऐसी गर्मी पहुंचनी चाहिए कि कई लोग आपके साथ जो हैं वो उस जज्बे के अंदर जो हैं शामिल हो जाएं। और वादा, आज वादा करने का वक्त है। वो वादा जो वफा करेंगे, वो वादा जो एक ऐसी शख्सियत के माबाइन किया जाएगा जिसको दुनिया के अंदर जो है इनकार नहीं किया जा सकता। पहलू तही ना करें, उससे अलग ना, एहसास, जज्बा, वादा। आज खुदावंद आपको एक मौका दे रहा है। अगर आप उस कच्ची कहगल के नीचे से निकलना चाहते हैं और दीवार को मजबूत करना चाहते हैं,
अपनी खामियों को ढूंढना चाहते हैं, खुदावंद के सामने रखना चाहते हैं, आज मौका है उस एहसास को खुदावंद के सामने पेश करें, जज्बा खुदावंद के सामने पेश करें और वादा खुदावंद के सामने पेश करें। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। आज के खुदावंद सारी बरकत के लिए, सारी मोहब्बत के लिए ऐ खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने लोगों ने ऐ खुदावंद सुना, जितने लोग ऐ खुदावंद सुनेंगे, अपने नाम को जलाल देने के लिए उन्हें ऐ खुदावंद बाइस से बरकत ठहराना, उनकी जिंदगियों को ऐ खुदावंद बदलना, उनकी जिंदगियों में ऐ खुदावंद इस कच्ची कहगल की ऐ खुदावंद पहचान ऐ खुदावंद मयस्सर करना, अपने नाम को जलाल देना और ऐ खुदावंद हमें एहसास और ऐ खुदावंद जज्बे और ऐ खुदावंद वादे पर कायम रहने की तौफीक दे, ताकि खुदावंद हम अपनी खामियां दूर करें और तेरे बेटे के इस दुनिया में आने के मकसद को ऐ खुदावंद समझे, उन पर अमल पैरा हो और ऐ खुदावंद बहुतों के लिए ऐ खुदावंद बरकत का सबब ठहरे। अलग होते हैं, हमें से हर एक के साथ रहिए, मुकर्रर वक्त पर फिर मिलाइए। हमारा मिल बैठना आपके बेटे के जलाल का सबब हो, मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अजमत, सल्तनत और इख्तियार, जैसा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अज़ल से चलता आ रहा था, अब्दुल आबाद तमाम मुकद्दसीन के साथ, हाजिर जमात के साथ और तमाम देखने और सुनने वालों के साथ अब्दुल आबाद होता रहे, आमीन। सबको सलाम, खुदावंद आप सबको बरकत दे।